सो स्टूडेंट्स वी आर नाउ स्टार्टिंग अवर क्लास और मुझे यकीन है कि जो शेयर की है मैंने स्क्रीन वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. वी हैव स्टडीड एंड वी revised in our last class about the brand and the topics related to brand management, in which we studied earlier that we can brand anything and anything can be branded. उसमें हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की थी, कुछ चीज़ें पढ़ी थी और कुछ चीज़ों को कोशिश किया था पढ़ने की. इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए फिर हम आगे आज चलते हैं कि ब्रांड डेवलपमेंट और ब्रांडिंग इज़ द सेम थिंग इन विच वी डेवलप एन आइडेंटिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट to create a differential effect and to create a unique and innovative identity so that the people are able to communicate with us, interact with us, and able to purchase our product, feeling some emotional attachment with us and having a positive image so that we can turn into number equity. And for this purpose, we need to do certain things which are very important in branding and which are very important in communicating a powerful message to the customers that who we are and what we are doing actually in the market. What I need to communicate to you today is uh, brand resonance model, which is very important and have certain characteristics and features in it. And for that purpose I need to share one more slide with you. Just wait for a second, let me share it to you. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये स्क्रीन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रही होगी. दिस स्क्रीन इज एक्चुअली ऑफ ब्रांड रेजोनेंस मॉडल. और ब्रांड रेजोनेंस मॉडल जो हमने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और पढ़ा था. अ, थोड़ा सा ये बड़ा अहम है इस चीज़ को लेके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजुली, आप रेजोनेंस किसको कहते हैं. और एक मिनट रुकिएगा, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा. ये बड़ा अहम है स्टूडेंट्स के जानना कि जी रेजोनेंस किसको कहा जाता है, व्हाट इज़ रेजोनेंस एंड व्हाई इट इज़ necessary in brand management. There are certain aspects of brand management and it is not easy to give a name, to give a symbol or give a logo can create a marketing following, a market following for you, or a large number of customers for you, or make your brand successful. No, it is not so easy. Branding is something which actually known as an association and which creates a resonance between you and between the customers. So the meaning of resonance is to to develop an interface between the company, between the business and between the customers by developing them into loyal customers, by developing a community and by developing an customer engagement with the company. इट मीन्स दैट आप ये करना चाहते हैं कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ कंपनी का इंटरफेस बनाना चाहते हैं जिसके अंदर कंपनी के साथ कस्टमर्स का एक रिलेशनशिप हो और वो रिलेशनशिप इस तरह से हो कि वो उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो, किसी और प्रोडक्ट की तरफ स्विच ना करना चाहते हो, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हो, डिस्कस करते हो, एक कम्युनिटी के तौर पर मौजूद हो और कस्टमर्स की इन्वॉल्वमेंट हो कंपनी के तमाम मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर. उसके लिए मैंने आज आपके सामने जो यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ये ब्रांड रेजोनेंस मॉडल है कोका कोला का. आप सबसे आखिर से देखिए, सबसे पहले है ब्रांड सैलियंस जो सबसे नीचे यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ इन द एंड. दिस इज ब्रांड सैलियंस. Brand salience means that what is the basic of that brand, what is that brand, what are the features and characteristics of that brand, what is the functionality of that brand. So हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि this brand which is known as Coca Cola
इज एक्चुअली बेवरेजेस, ये कोल्ड ड्रिंक है, बेवरेजेस है, ठीक है जी। दूसरी क्या बात है कि ये दुनिया भर में बड़ा जानना पहचानते हैं, लोग इसको जानते हैं। इसमें सर्टेन फ्लेवर है जो किसी और के पास नहीं है, और इसको हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस, this is something which gives you the sense of community, this is something which gives you the sense of sharing, टुगेदरनेस, लाइकनेस, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिस इज़ व्हाट अ प्रोसेस ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोका कोला को हटाकर यहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले आते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हम KSBL की बात कर रहे हैं या IBA की बात कर रहे हैं, या हम जो है वो लम्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रांड सैलियंस में आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स आने चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी, क्या बेसिस उस ब्रांड की डेवलप होने चाहिए, और जिस तरीके से आप उस ब्रांड को डेवलप करना चाहेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज द ब्रांड सैलियंस फीचर्स ऑफ लम्स यूनिवर्सिटी, तो आप कहेंगे कि इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ लम्स। आफ्टर दैट इट इज मोस्ट रेप्यूटेबल ब्रांड, और यू कैन से द मोस्ट क्वालिटी ब्रांड। फिर आप कहेंगे दे गिव्स अस सेवरल डिग्री प्रोग्राम, दे आर ऑफरिंग सेवरल डिग्री प्रोग्राम्स। फिर आप कहेंगे फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स। फिर आप कहेंगे कि दे गिव यू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। फिर आप कहेंगे डेवलपमेंट। फिर आप कहेंगे कि दे प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड योर करियर। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रांड सैलियंस में है, और जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप है, कि जिसके ज़रिए आप किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड में तब्दील करना शुरू करते हैं या ब्रांड को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो, ऐसी बात जो आप नहीं समझ सके हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी क्लियर नहीं हो रही हो, तो यू कैन आस्क मी। एनीथिंग यू कैन आस्क इफ यू आर अनक्लियर अबाउट दैट। मैं बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बता रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। दिस इज अ फेज ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग 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 जो आपके लिए बड़ा अहम है, और जो आपके लिए इस चीज़ में डेवलपमेंट लेकर आता है, कि फॉर एग्जांपल आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है कि स्टूडेंट्स गो एंड डेवलप सम ब्रांड, या और ट्रांसफॉर्म एनी प्रोडक्ट इनटू ब्रांड, तो दिस इज नाउ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉर द डेवलपमेंट साइड ऑफ दैट ब्रांड। So for that purpose you need to know the brand resonance model. If you do not know how to develop your brand, it is not possible for you to develop any product into brand. For example, there are so many products available in the market. अगर आप अपने माइंड के अंदर आर्टिकुलेट शुरू करना शुरू करें 20 प्रोडक्ट जिनको आप ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं, तो देर आर सेवरल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एनी मोटर बाइक, आप कह सकते हैं वी कैन डेवलप एनी कार, we can develop any tea into a brand, we can develop any mineral water into a brand, we can develop any cosmetic brand, we can develop any you can say jewelry brand, we can develop any bed sheet as a brand, we can develop any clothing brand, we can develop any decorative brand, you can develop any furniture brand. So there are so many things which you can develop as a brand for, but for that purpose you know how to develop this product as a brand। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट पर्पज दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। देखें, जब भी आपको कोई पिक्चर ऐसी नज़र आती है जो पिरामिड की शक्ल में हो, तो उसका मतलब ये होता है, तो जो सबसे नीचे वाला फेज है, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर पिरामिड। तो साइलियंस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, or you can say the particular product which you wants to transform as a brand. So for this purpose the very first thing is the salience, which actually focus on the functionality of the brand. For example, अगर आप कहते हैं कि आप कोई गाड़ी डेवलप करना चाहते हैं एज अ ब्रांड, और आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कार को डेवलप कर लिया, अब आप चाहते हैं कि नहीं जी, ये लोग इसको एज अ ब्रांड के तौर पे जाने, और हम एक ऐसी कंपनी बन जाए कि जिसके बारे में लोगों को मालूम हो, लोग पहचान सकें, लोग इस हमारे साथ इमोशनली अटैच हो, वी हैव सर्टेन रिलेशनशिप्स। तो इट इज़ वेरी
important to develop that a particular brand, और उसमें आप कहेंगे कि the functionality of a car is to provide a transportation means, to provide a safe journey, to provide a journey which is safe, which is a quality journey, a quality vehicle, a manufacturing vehicle which is fuel efficient or which gives you comfort or which gives you luxury, और जिसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी है या इसका इंजन जो है वो इतने सीसी का है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेलियंस में आती हैं। अगर आप मजीद आगे बढ़ते हुए एक स्टेप हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आफ्टर सेलियंस यू हैव टू थिंग्स which are on the same level but they are categorized into the performance and imagery। पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं फिर इमेजरी की। परफॉर्मेंस मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि हाउ दैट पर्टिकुलर ब्रांड विल परफॉर्म इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी जूस, तो वो जूस कैसा होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोका कोला, क्योंकि अभी हम कोका कोला की बात कर रहे हैं तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। अगर हम कोका कोला की बात कर रहे हैं तो कोका कोला में क्योंकि वो दो चीजें शामिल हैं जिसको आप कैफीन कहते हैं या एक तरह से वो जूस की कैटेगरी में भी आता है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस ये होगी जब आप इसको यूज करेंगे तो इट इट सर्व एज एन एनर्जाइजर, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, लिहाजा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप एनर्जी महसूस करते हैं। एनर्जी में इसलिए महसूस करते हैं कि इसके अंदर एक रिविटलाइजर भी होता है जिसको हम कैफीन कहते हैं, और ये आपको रिविटलाइज करने की कोशिश करता है, नींद से जगाता है, आपको एनर्जाइज करता है कैलोरीज की वजह से। फिर जो वाटर जो हेल्दीनेस है इसके अंदर है कि वो जो वाटर हम यूज करते हैं वो हेल्दी होता है और वो किसी किस्म के जर्म्स और बैक्टीरिया से पाक होता है। सिमिलरली वी कैन से दैट इट इज वेरी स्टाइलिश, इट हैविंग अ सर्टेन फ्लेवर, इट इज रिफ्रेशिंग, इट इज वेरी फ्रेश, इट इज वेरी यू नो रिफ्रेशिंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप परफॉर्मेंस में यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए। जैसे अगर आप चाय की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि चाय बहुत खुशबूदार है, बहुत रिफ्रेशिंग है, रिविटलाइज करता है, एनर्जाइज करता है। आपको नींद आ रही होगी तो आपकी नींद भगाने में आपको बड़ा मददगार साबित होगी। इसी तरह अगर आप वाटर की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये प्यूरिफाइड है या से फ्री है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये आपके अंदर हाइड्रेशन को बढ़ाता है, ये इसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। सिमिलरली आप देखें सामने इसके बाद है इमेजरी। इमेजरी का मतलब ये है कि द थिंग यू वांट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट यू वांट टू क्रिएट विद दिस प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। जैसे कोका कोला वालों ने कोशिश की कि हम ये इमेजिन करवाएं लोगों को, इन लोगों के माइंड में ये इमेज क्रिएट करें कि कोका कोला इज समथिंग विच गिव्स यू द फ्लेयर ऑफ हैप्पीनेस। एक खुशी के मौके पर आप देखें कि हम हमेशा हैप्पीनेस के मौके पर और गेट टुगेदर के मौके पर जो है वो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, पीते हैं, या हम पिकनिक पे जा रहे हैं या हम गैदरिंग में जा रहे हैं। So what is the image of Coca-Cola we want to develop in the mind of the customer, that it is something which we use to drink while we are happy, while we are having fun, while we are having some celebrations, when we are all together and while we are enjoying something। तो हम ये एक्चुअली लोगों के माइंड में क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ टूल फॉर ब्रांड पोजिशनिंग। कि व्हाट इज दिस ब्रांड इज समथिंग विच वी यूज व्हेन वी आर हैप्पी। लेकिन आप देखें कभी दुख का घड़ी हो, दर्द का घड़ी हो, कोई डिजास्टर आया हुआ हो मुल्क में, या सैलाब आया हुआ हो, या कहीं हलाकतें हुई हो, या घर में खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, ऐसी बात हो, तो कोई भी आपको ना कोल्ड ड्रिंक पीने का मशवरा देता है ना आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर घर में आता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द इमेजरी ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक दैट इट इज समथिंग विच वी यूज व्हेन वी आर हैप्पी। लेकिन लोग चाय पी लेते हैं गम के मौके पे, पानी पी लेते हैं, बल्कि जूस भी पी लेते हैं कि चले जी इससे ताकत आएगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीता है और ना कोई रिकमेंड करता है, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात पहले से बड़ी क्लियर है कि कोल्ड ड्रिंक इज समथिंग विच गिव्स यू द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, विच यू गिव्स यू द सेंस ऑफ पिकनिक एंड पार्टी, विच गिव्स यू द सेंस ऑफ सेलिब्रेशन। सो हम हमेशा ऐसे वक्तों पर कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं और यूज करते हैं जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं और हम इंजॉय कर रहे होते हैं। दिस इज समथिंग विच यू कैन क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गाड़ी बनाते हैं तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं, इमेजन बना सकते हैं कि दिस
अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा जस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वी आर एबल टू क्रिएट द इमेज ऑफ अवर ब्रांड वॉट एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ क्वालिटी ब्रांड, a brand which we use when we are happy, a brand which gives you energy, a brand which is very stylish, a brand which is very full of fun and enjoyable, a brand which gives you the sense of development and all togetherness. So this is something which depends on you कि आप अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मिनरल वाटर हो, चाहे वो कोई डेकोरेटिव आइटम हो या कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो. इट्स ऑल अबाउट यू हाउ यू विल एबल टू मैनेज योर ब्रांड इन द मार्केट सो दैट कस्टमर्स आर गेट अटैच टू यू. उसके बाद आप देखें, जब आप परफॉर्मेंस और इमेजरी लोगों के माइंड में क्रिएट कर सकते हैं या कर लेंगे या करने के फेज में होंगे, देन वी हैव जजमेंट्स एंड फीलिंग्स. Judgments means that what is the people's perception about this brand, how people think about that brand, how people respond about that brand. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है. दुनिया का कोई भी शख्स हो, दुनिया में अफ्रीका में रहता हो या सोमालिया में रहता हो या ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, कनाडा अमेरिका में रहता हो या रशिया में रहता हो, वो बड़े इजीली इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर लेता है और बता देता है कि जी ये कोका कोला है. दुनिया में ये टॉप ब्रांड के तौर पे माना जाता है. दुनिया में कहा जाता है कि जी कोका कोला का जो फ्लेवर है वो यूनिक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक उसके जैसा टेस्ट और उसके जैसा फ्लेवर नहीं रखती है, फन है और इनोवेटिव है. तो ये लोगों की जजमेंट है इस ब्रांड को लेके. ये जजमेंट आप भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हलीब इज अ वेरी क्वालिटी मिल्क. So they don't go for milk pack, they go for Halib. They have certain judgment about Halib, they have judgment, they have certain feelings about Habib. Similarly, we have Honda and Yamaha bikes. People have different judgments about the bike. Honda और Yamaha के बारे में ड्यूरेबिलिटी है, क्वालिटी है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको लेके लोग जो हैं वो जजमेंट करते हैं. लेकिन ये तमाम चीज़ें उन्होंने खुद डेवलप की हैं. ये तमाम रेजोनेंस मॉडल उन्होंने खुद बनाया है कि जी हम जो है वो हमारी ये परफॉर्मेंस है, ये हमारा इमेजरी है, ये हमारा जजमेंट्स हैं. और फिर इसी को लेके हम एक्चुअली अल्टीमेटली इस पायरामिड को नैरो कर देते हैं और ऊपर जाकर हम ये बात करने के काबिल हो जाते हैं कि क्यों लोग आपकी ब्रांड को ही खरीदें और किसी और ब्रांड की तरफ जो है वो स्विच ऑफ ना हो. फीलिंग्स में यकीनी तौर पे जैसे हमने इमेजरी की बात करी कि जी हमने ये ब्रांड का इमेज क्रिएट किया है इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ आवर कस्टमर्स, दैट दिस इज a brand which is easily recognizable by the people, and people easily distinguish this brand having certain imagery about this brand, that this brand is something which gives you fun and excitement. So feeling is all about your emotions. And similarly, feeling is something when I am with my family, with I am with my siblings, brothers, and with my family member having some celebration. So I think Coca Cola is something which gives you the sense of emotion, या फीलिंग या रिफ्रेश फीलिंग या सेलिब्रेशन फीलिंग. तो पहले सबसे पहले कि हम उस ब्रांड को डेवलप करने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी को उसके साथ अटैच करते हैं, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं और उसकी इमेज को लोगों के माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. और फिर आगे बढ़ते हैं कि जी अब लोगों के माइंड में जो हमने परसेप्शन क्रिएट किया है, तो लोग अब इस ब्रांड को कैसे जज करेंगे कि हाउ दिस ब्रांड बिहेव्स एंड what is the quality and perception of this brand in the market. Similarly, हम उसके साथ एक और चीज अटैच करते हैं कि हाउ पीपल फील अबाउट दैट ब्रांड. बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार बेकार है, मत यूज करना, अरे यार उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी खुशबू अच्छी नहीं है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, मजा नहीं आता उसको यूज करके. तो ये लोगों की फीलिंग है किसी ब्रांड को लेके, लोगों का जजमेंट है जो लोग
उस ब्रांड को लेके बताते हैं और उस ब्रांड को लेकर उसके बारे में हमें कोशिश करते हैं बताने की। जब हम इस पायरामिड को साइलेंस से शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस, इमेजरी, जजमेंट और फीलिंग पर लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस पायरामिड को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी अब हमने रेजोनेंस क्रिएट कर दी। रेजोनेंस का मतलब है कि एक रिश्ता क्रिएट कर दिया, एक ताल्लुक क्रिएट कर दिया, एक एक रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दी। और वो रिलेशनशिप क्या है कि वी ट्राई टू डेवलप आवर customers as our loyal customers. We 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 develop and transform the sense of community, the sense of active customer involvement in customer, that customer thinks that this is something which is gives us a feeling of community, that we are united, we are celebrating, वी आर ऑल टुगेदर। तो इसका एक अपना एक मज़ा है और इसका अपनी एक फीलिंग है जो कोका कोला ने क्रिएट की है कि जी अगर आप साथ हैं, खुश हैं, एक साथ रहना चाहते हैं और आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप कोका कोला पीजिए। इसका मतलब है कि कोका कोला का जो रेजोनेंस मॉडल है वो दुख में, दर्द में, एक्सीडेंट में या किसी किस्म की मिसहैप में काम नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दे डेवलप कोका कोला इन सच अ वे that they are actually communicating us that Coca-Cola is something which is actually a drink when we are happy. तो लोग खुशी के मौके ढूंढते हैं और उनको कम मौके मिलते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोका कोला पी कर वो खुश होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये खुशी के वक्त पिए जाने का ड्रिंक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको पी कर भी खुशी महसूस करें। तो देर आर सर्टेन पैरामीटर, देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म एंड डिवेलप वाइल डूइंग ब्रांडिंग। स्टूडेंट्स, अभी तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आस्क। If you want to ask anything which is unclear, so you can ask me again. Anything. If you are unclear about anything, you may ask. Fine. तो इसमें हम कुछ चीज़ें और हैं जो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डायमेंशंस दी हुई हैं, जो जो चीज़ें अभी आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों की कैटेगरीज को, परफॉर्मेंस डायमेंशंस को, इमेजरी डायमेंशंस को, जजमेंट डायमेंशंस को, फीलिंग डायमेंशंस, रेजोनेंस डायमेंशंस को डेवलप करने की कोशिश की गई। अब जैसे कि डेमो रेजोनेंस डायमेंशंस में द बिहेवियरल लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बिहेवियर ऑफ कस्टमर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। What is the behavior of the customer while purchasing certain product? It is very necessary to understand. And what is the frequency of purchasing? जैसे कोका कोला ने खुद ही हमें बताया, खुद ही हमें क्लियर किया कि जी आप जब भी खुश हो या आप खुश होना चाहते हो तो आप कोका कोला ले सकते हैं। तो इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन जो है वो आपके बिहेवियर पर है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका लाइफ पैटर्न क्या है, कि आप छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंजॉय करना चाहते हैं। तो ठीक है, आपके पास एक बहाना है कि जी हाँ जी हम खुश हैं, हम साथ जा रहे हैं, हम साथ आ रहे हैं, आज लंच कर रहे हैं, कल डिनर कर रहे हैं, फिर गेट टुगेदर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, क्योंकि ये तो है ही ऐसी चीज़ जिससे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात देयर इज़ नो रीज़न टू सेलिब्रेट, बट वी बाय कोका कोला एंड हैव कोल्ड ड्रिंक ऑल टुगेदर विद अवर classmates, with our colleagues, with our family members, just to have ऑल टुगेदर एंड सेलिब्रेट। तो ये हमारी बिहेवियरल थिंकिंग है, हमारा लाइफ स्टाइल है, जो मार्केटर्स एक्चुअली रीड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएशन इफेक्ट को उसमें से कैटर करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मुख्तलिफ चीज़ों को लेके क्या बिहेवियर है, वो लोगों का मुख्तलिफ चीज़ों को लेके क्या अप्रोच है। बहुत सारे लोग गाड़ियाँ इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कार इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। If you don't have car, you are very much be in trouble to transport from one place to another. लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कार is a means of social status. They think that if you want to be stylish, if you want to be, you know,
having certain status in the class, you go for a car which is very stylish, very luxury, very comfortable. कुछ लोग हर महीने, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद कार का मॉडल चेंज करते हैं. It all depends upon the behavior of the customer, their demographics and their psychographics, their affordability and other factors also matter in this case. तो इसी तरीके से कि आपके अटैचमेंट क्या है. कुछ लोग हमेशा से टोयोटा करोला कार चला रहे हैं, होंडा चला रहे हैं, वो वही चलाना चाहते हैं. कुछ लोग मिस्टुबिशी चलाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें उससे ज़्यादा ड्यूरेबल गाड़ी नज़र नहीं आती, चाहे टोयोटा करोला कोई सा भी डिज़ाइन और स्टाइल निकाले, लेकिन वो स्टिक हैं अपने मिस्टुबिशी के साथ. तो ये उनकी अटैचमेंट है जो उनको मजबूर करती है उस गाड़ी को खरीदने में. या आप ये कह सकते हैं कि उनको लगता है कि दिस ब्रांड इज समथिंग विच इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर मी, और मुझे इससे बड़ी खुशी खुशी है इसको लेने में बहुत. तो लोग उसको लेने की तरफ जाते हैं. सेंस ऑफ कम्युनिटी भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सच रिगार्ड. जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप रूह अफ़ज़ा के एडवर्टाइजमेंट देखें, तो आप देखेंगे कि रूह अफ़ज़ा इज समथिंग विच ऑलवेज फोकस ऑन that while having अफ्तार, while having all the family together having अफ्तार, तो उस वक्त आप मशरूब मशरूब रूह अफ़ज़ा को पिएं, और उस वक्त आप मशरूब मशरूब रूह अफ़ज़ा को लीजिए. एक फैमिली का, एक कल्चर का, एक ट्रेडिशन का वो इम्पैक्ट देने की कोशिश करते हैं माशरे में. तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि एज वी आर मुस्लिम्स लिविंग इन पाकिस्तान हैविंग रमज़ान शरीफ, और हमारे घरों में ये होता है कि हम अफ्तारी एक साथ मिलकर बैठ के करते हैं, और उसमें सब बड़े भी मौजूद होते हैं. तो जो है वो ये ब्रांड ऐसा है जो आपके साथ अटैच्ड है, इस तरीके से आपको एक ताल्लुक प्रोवाइड करता है. वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं कि अगर रूह अफ़ज़ा नहीं है तो अफ्तार अधूरा है. या हमारा, अगर आप टैंग शाम को नहीं पियेंगे अफ्तार के वक्त पे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप रिफ्रेश नहीं हो सकेंगे. देयर आर सो मैनी थिंग्स. या आप अपनी बेटी को रुखसत करेंगे और अगर मोल्टीफोम नहीं देंगे, तो फिर जो है वो आप शायद रिस्पॉन्सिबल बाप नहीं है. तो दिस इज समथिंग विच ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केटर, हाउ ही और शी इज ट्रांसफॉर्मिंग द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसमें आप देखें, इसके बाद एक और चीज इसने दी है, एक्टिव इंगेजमेंट. यू कैन क्रिएट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम. पहले तो ऐसा नहीं होता था, एडवर्टाइजमेंट होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर हैविंग social media platforms and digital marketing so importantly increase that they give you a sense of interaction with the customers. आप कस्टमर से सोशली इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके कमेंट्स, उनके लाइक डिसलाइक जान सकते हैं, उनके फीडबैक के ऊपर काम कर सकते हैं. तो पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये हो गया है कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चैनल्स के ऊपर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनको इंगेज करके रखने की कोशिश करते हैं. अपनी प्रमोशंस के बारे में, अपने डील्स के बारे में लोगों को पहले ही बताते हैं, ताकि लोग जो हैं वो आपके आपसे जो इंगेजमेंट है उसको बरकरार रखें, और किसी और ब्रांड के ऊपर वो चले ना जाएं, या किसी और ब्रांड के ऊपर वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए. So it is very important to have some linkages with the customers, having some active engagements with the customer, because engagement and interaction gives you a sense of trustworthiness, a relationship with the customers, and by all means a way of promoting your product to one customers more frequently and having interaction with them. जैसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट करते थे और आप लोगों को बताते थे कि जी हम ये हैं और हम मार्केट में इस नाम से अवेलेबल है और हम ये ज़रूरतें आपकी पूरी कर रहे हैं, लेकिन यू आर अनएबल टू गेट और रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एंड डिजिटल चैनल, वी आर हैविंग अ पुल स्ट्रेटजी, और हम लोगों को अपने कंटेंट तक बुलाते हैं. वो फेसबुक पर हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट देते हैं, और हमें फीडबैक देकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी आपका ब्रांड हमें पसंद है या नहीं. आगे बढ़ते हैं. वी हैव few more things to discuss. Customer value is very important to the point that you are unable to create the value for the customers. Your
branding is useless and you are unable to develop a customer brand relationship. Customer value is actually the base of building a strong brand and the foundation of brand resonance. उसके लिए बड़ा अहम ये है कि आप ये परसेप्शन क्रिएट करें कस्टमर्स में कि दिस ब्रांड कंटेन्स द मोस्ट वैल्यू फॉर यू, और उसके लिए आपको एक ब्रांड इक्विटी मॉडल को डेवलप करना पड़ता है जो ब्रांड रेजोनेंस के साथ लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि जो पैसे आप पे करने के बाद ये ब्रांड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस ब्रांड इज एक्चुअली डेवलप फॉर यू पीपल एंड दिस ब्रांड गिव्स यू द मोर वैल्यू। आप देख लें, आप जो ब्रांड्स दुनिया अपने जिंदगी में यूज कर रहे हैं वो तमाम ब्रांड्स वो हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर ये जस्टिफाई कर चुके हैं, ये सेटिस्फाई कर चुके हैं कि जो पैसा हम बाल धोने में यूज कर रहे हैं उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हमें ये शैम्पू देता है। जो पैसा हम मिनरल वाटर को खरीदने में यूज कर रहे हैं उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हमें इस मिनरल वाटर से मिलती है, तभी आप खरीदते हैं। तो क्रिएटिंग अ कस्टमर वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वैल्यू कस्टमर नेवर गो फॉर परचेजिंग एनीथिंग। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजों को और देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो बड़ी अहम है, वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाउ यू विल एबल टू डेवलप अ मैनेजमेंट रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स बाय नोइंग कस्टमर। आपको पता कैसे चलेगा कि कस्टमर का ट्रेंड क्या है, कस्टमर का पैटर्न ऑफ परचेजिंग क्या है। तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो कहलाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर का डाटा जो है वो कंपनी निकालती है और कंज्यूमर की जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश करती है। जैसे कि कस्टमर कौन सी चीज़ कब खरीदता है, कौन सी चीज़ कितना फ्रीक्वेंट खरीदता है, अ, अपनी इनकम का बेशतर हिस्सा वो किस चीज़ को खरीदने में सर्व करता है। ये तमाम चीज़ें जानने से, ये तमाम चीज़ों को मालूम होने से हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि हम कस्टमर से पॉजिटिव रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकें। स्टूडेंट्स, हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। Company develops some relationship management with the customers by developing and by getting their activity track through systems
और हम उसको फिर ज़ाहिर है मैनिपुलेट करते हैं और फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर का जो रवैया है और जो उनकी टेक्निक ऑफ कंज्यूमर एक्टिविटी है उसके ज़रिए हम उन तक कैसे करीब जा सकते हैं और पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग का हिस्सा हैं और मार्केटिंग के अंदर जो है वो मौजूद हैं जो हमें थोड़ी बहुत और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेकिन बहरहाल पता होनी चाहिए। अच्छा जी। कस्टमर इक्विटी अभी हमने बात की थी कि जी हम कस्टमर को वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं और उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जी किस तरीके से कस्टमर जो है वो ये समझेगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है और वो प्रोडक्ट वो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है वो प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करने में जो है वो इंटरेस्टेड होता है। कस्टमर इक्विटी की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे लोग अभी तक और बहुत अरसे तक स्टूडेंट्स कस्टमर इक्विटी को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कस्टमर इक्विटी होती क्या है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्चुअली देयर इज़ नो सिस्टम टू कैलकुलेट कस्टमर इक्विटी क्योंकि कस्टमर इक्विटी इज़ based on the customer's behavior of purchasing different products and their attitude towards different product. It is not necessary कि कस्टमर हर चीज को खरीदे और उसको एक्सपीरियंस करे तब उसके बारे में राय दे सके या उसके बारे में एक खास परसेप्शन रखता हो। बाद औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि बहुत देयर आर सेवरल ब्रांड्स जो कस्टमर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसके बारे में वो राय रखते हैं और उनको पता है कि इस ब्रांड को यूज़ करने में हमें ये इक्विटी मिलती है। लेकिन बहरहाल अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो द सम ऑफ लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज इफेक्टेड बाय रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड क्रॉस सेलिंग consist of three components: value equity, brand equity, and relationship equity. I will provide you the presentation so that you are able to read it out by yourself. थोड़ा सा ये एक चीज समझने की और देखने की रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर इक्विटी टू ब्रांड इक्विटी. Customers drive the success of brands, but brands are the necessary touch point that firms have to connect with their customers. कस्टमर ही ब्रांड को सक्सेसफुल बनाते हैं और कस्टमर ही एक ऐसा टच पॉइंट है जिसके जरिए ब्रांड्स या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कर पाती हैं कस्टमर्स के साथ. पहली बात. दूसरी बात ये कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मेंटेन्स दैट ब्रांड क्रिएट सर्टेन वैल्यू बाय इलिसिटिंग डिफरेंशियल कस्टमर रिस्पॉन्सेज टू मार्केटिंग एक्टिविटीज. ब्रांड ही वैल्यू क्रिएट करता है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए. और कैसे करता है? इस तरह से करता है कि कस्टमर जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देके मुख्तलिफ रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा ब्रांड ऐसा है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली मार्केटिंग एक्टिविटीज को वो रिस्पॉन्ड करते हैं. मार्केटिंग एक्टिविटीज जैसे हम मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए, प्रमोशंस के जरिए, डिस्काउंट्स के जरिए, मुख्तलिफ डिजाइन के जरिए. कभी हम उसका स्टाइल चेंज करते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी 30% ऑफ है, कभी हम कहते हैं 20% ऑफ है, कभी हम कहते हैं ईद कलेक्शन है. तो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, देयर आर डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स. ब्रांड एक्चुअली हैविंग सर्टेन वैल्यू फॉर कस्टमर्स बट कस्टमर्स मेक सर्टेन डिसीजंस और वो डिसीजंस लेते हैं इस बेसिस पर कि ब्रांड का रेजोनेंस मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर उन्हें लगता है कि नहीं जी जुनैद जमशेद का कुर्ता पहनने से वी आर looking good or we are having a certain sense of social status, they go for Junaid Jamshed और वो ये decide करते हैं on the basis of differential effect they are getting from that brand. Number three, the higher price premiums and increased levels of loyalty engendered by brand generate incremental cash flows. There are certain brands who are very expensive, having high price premiums, but still people are go for purchase that brand because they have a strong resonance model. कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में बड़े एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं. वाई? ऐसा क्यों है? बिकॉज द पीपल आर वेरी मच अटैच एंड इमोशनल अटैचमेंट विद दैट ब्रांड. दे थिंक दैट दिस ब्रांड गिव्स अस द फीलिंग ऑफ ओननेस, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ सोशल स्टेटस. सो दे गो फॉर गेटिंग दैट ब्रांड. वो कितना ही प्रीमियम क्यों ना और कितना ही इंक्रीज लेवल ऑफ जो है वो लॉयल्टी उसके लिए चाहिए क्यों ना हो, लेकिन आप देखें कि लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लेवल ऑफ लॉयल्टी उन उन पर्टिकुलर ब्रांड्स को लेके बड़ी हाई होती है. और यकीनी तौर पे जब आप एक्सपेंसिव ब्रांड खरीदेंगे और एक्सपेंसिव ब्रांड को हासिल करेंगे तो उसका जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है
कंपनी का वो यकीनी तौर पर इंक्रीज होगा, और ऐसे ही होता है। तो दिस इज ऑल विच इज बेस्ड ऑन द मार्केटर, हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिज प्रोडक्ट इनटू ब्रांड। तो सबसे पहली बात ये कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड यू मस्ट हैव सम ब्रांड एलिमेंट्स अटैच टू द ब्रांड्स। उनका लोगो, नाम, सिंबल, स्टाइल, कलर, उसकी थीम, बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी अहम है अटैच करने के लिए। जब आप उसको अटैच कर लेते हैं तो फिर आप लोगों में कम से कम डिफरेंशियल इफेक्ट पैदा कर लेते हैं कि हाँ जी, हम जो है वो ये मखसूस ब्रांड है हमारा, और हम जो है वो इस कंपनी के बनाए हुए ब्रांड है और उसका। लेकिन वो काफी नहीं होता। अगर आप ब्रांड बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो आपको उसके साथ एक रेजोनेंस मॉडल डेवलप करना पड़ता है, एक ब्रांड इक्विटी मॉडल को डेवलप करना पड़ता है जो कस्टमर्स के साथ इमोशनली अटैच्ड होता है, ये फीलिंग देता है, ये इमोशंस देता है कस्टमर को कि दिस ब्रांड इज फॉर मी एंड दिस ब्रांड इज डेवलप फॉर द सेक ऑफ माई बेनिफिट एंड ओनरशिप। इसके फीलिंग है, इसमें रिफ्रेशमेंट्स हैं, इसके अंदर अटैचमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तभी वो ब्रांड होता है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनता है। वरना ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम यूनिक है, जिनकी ब्रांडिंग अलहदा है, जिसकी पैकेजिंग अलहदा है, जिनकी प्राइसिंग अलहदा है, लेकिन लोग फिर भी उस ब्रांड को नहीं खरीदते, और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि वो ब्रांड मार्केट से खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड का रेजोनेंस मॉडल स्ट्रांगली डेवलप नहीं कर सकता। There are so many options in the market still available. You can transform anything into a brand by developing a strong brand elements and having a strong brand resonance model. Now after that we have certain things. One more thing I need to share with you. In the brand development, there are certain elements which are memorable, meaningful, likable, transferable, adaptable and protectable. मैं आपको शेयर करता हूँ ये स्लाइड ताकि आप इसको देख सकें। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। ब्रांड को जब हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जब उसके साथ उसके एलिमेंट्स को अटैच करते हैं, तो हम जो है वो ये चीजों को ध्यान में रखते हैं ताकि एक ऐसा ब्रांड बन सके, एक ऐसा मार्केट और ऐसा कंपनी के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन सके जो लोगों में लाइकेबल हो, लोग उसको पसंद करें। तो उसके लिए हम इन 5 और 6 चीजों को फोकस करते हैं। यानी कि हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो मेमोरेबल हो, लोग इजीली उसको पहचान लें, लोग इजीली उसको रिकॉल कर लें। जैसे आज से कई सौ साल, कई साल पहले, डेकेड्स पहले सर्फ बनाया गया था। सर्फ एक ऐसा पाउडर, एक ऐसा डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने में यूज होता है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की थी कि आज तक लोग कपड़े धोने के लिए सर्फ बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि जी हमें एक पाउडर चाहिए जो हम अपने कपड़े को धो सकें, बल्कि वो एक आइडेंटिटी बन चुका है कि आपको अगर कपड़े धोने हैं तो आपके पास हर सूरत में सर्फ होना चाहिए। तो आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो मेमोरेबल हो, जिसको लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, इजीली रिकॉल कर सके, मीनिंगफुल हो, आपको पता हो कि व्हाट इज दिस, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। बहुत सारे लोग बहुत दफा सुपर मार्ट जाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट को देखकर उनको समझ में ही नहीं आता कि इट इज अ शैम्पू और इट इज अ स्टाइलिंग जेल और वॉट। तो उनको ये बताने के लिए हमें अपने आप को बड़ा डिस्क्रिप्टिव रखना पड़ेगा, परसुएसिव रखना पड़ेगा कि लोग इजीली रिकॉल कर सके और जान सके कि हम कौन हैं। तो वी मस्ट बी वेरी मीनिंगफुल, यानी कि आपको देखते ही लोग पहचान लें कि जी आप क्या प्रोड्यूस करते हैं और आप क्या बनाते हैं। आफ्टर दैट वी मस्ट बी लाइकेबल। जैसे कि मैंने आपको कोक का रेजोनेंस मॉडल दिखाया कि दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स एज अ फन एंड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग ड्रिंक which you can consume whenever you are happy, whenever you are with your family. और इट मस्ट बी रिच विजुअल एंड वर्बल इमेजरी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसका, उसकी कलर को, उसके इमेज को, उसके स्टाइल को, उसकी पैकेजिंग को बड़ा यूनिक होना चाहिए ताकि लोग जो हैं उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाए, उसको लाइक करना शुरू हो जाए। आप वो कलर्स यूज करेंगे जो आंखों को अच्छे लगते हैं, वो पंच लाइन्स और वो
मोटिव्स यूज करेंगे जो लोग सुनना चाहते हो। एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए, यानी कि उसका जो ओवरऑल लुक होना चाहिए, जो उसका ओवरऑल एस्थेटिक होना चाहिए, वो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बड़ा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देख के खुश हों। उसका जो शेप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बड़ी अहम है प्रोडक्ट को डेवलप करने में। उसके बाद इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल विद इन एंड अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, across geographic boundaries and culture, yani कि if you are transforming any mineral water, that mineral water must be uh, consume all over the world। ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे जी ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मिनरल वाटर होता है वो तो उसकी तो करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है या वो ऐसा होता है। नहीं जी, ऐसी चीज होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में बैक वर्क यूज की जा सकती हो। जैसे आप कोई चॉकलेट बनाते हैं पूरी दुनिया में यूज होती है, आप कॉफी बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो किसी और मुल्क के लोग भी आकर अगर आपके मुल्क में उस ब्रांड को पी रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफरेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल ब्रांड्स बहुत आसानी के साथ और बहुत पूरी दुनिया पे पी जाती है। आप देखें कपाचीनो पूरी दुनिया में पी जाती है। आप देखें कि कोक एक मल्टीनेशनल ब्रांड है और लोग दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हो कोक को ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उसको कंज्यूम भी करते हैं और उसको पीते भी हैं। तो ये और पहचानते भी हैं। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान में आके कोई पूछे कि भाई व्हाट इज दिस, ये तो हमने कभी देखी नहीं है, तो हमने कभी पी नहीं, अच्छा ऐसी कोल्ड ड्रिंक होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कि यू मस्ट बी वेरी मच ट्रांसफरेबल, आप कहीं पे भी दुनिया में भी हो आप इसको पहचाने देखें तो पहचान लें। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरह की चीज बनाएं कि कुछ लोग बोले कि नहीं जी ये हमारे लिए नहीं है और कुछ लोग बोले कि नहीं जी ये हमारे लिए है। सेगमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट वो कौन लोग हैं जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि आप उसको किसी वक्त भी कंज्यूम कर सकते हो। उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया ना हो, उसके लिए कोई मुश्किल चीज ना हो, उसके लिए कोई ऐसी चीज ना हो जो किसी किस्म की हर्डल या रुकावट उसको अडॉप्ट करने में बने। यानी कि कोई ऐसी कोई चीज ना बनाए जो हर जगह चार्ज ना होता हो या जिसके लिए सर्टेन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की जरूरत हो या ऐसी कोई चीज ना हो जिसको हर कोई कंज्यूम ना कर सकता हो। तो इट मस्ट बी अडेप्टेबल। उसके बाद आगे है प्रोटेक्टेबल, यानी कि आप वट एवर यू प्रोड्यूस, वट एवर यू ब्रांडेड, दैट मस्ट बी पेटेंट, दैट मस्ट बी कंपेटिटिवली पेटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बना लिया किसी और कंपेटिटर ने भी बना लिया, यूनिलीवर भी बना रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बना रहे हैं, सब बना रहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी चीज आप बनाएंगे वो लीगली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और आपकी कंपनी के नाम से वो डिवेलप होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो बड़ा रिचली काम करते हैं ब्रांड को डिवेलप करने में। Students, a few more things we need to discuss, and for this purpose, I am sharing another slide with you. ठीक है, just wait for a second. Let me share you with the another slide so that you are able to understand. Just wait.
ये यकीनी तौर पे स्लाइड नज़र आ रही होगी जिसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी लिखा हुआ है. Before transforming the brand strategy, or while transforming brand strategy, we need to develop a product strategy. और हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, integrating the brand into supporting marketing programs. Supporting marketing should be designed to enhance awareness and establish desired image of the brand. उसमें 3 स्ट्रेटजीज हैं जो हमें जिस पे हमें काम करना है. प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है और चैनल स्ट्रेटजी है. Marketing mix is a tool through which we are able to make our product aware, through which we are able to make our product launch in the market, or in the way we are actually able to handle our product in the market. हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, फिर उसके प्राइस को सेट करते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर जगह पर प्लेस करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को जो है वो बनाते हैं और फिर उसको प्रमोट करते हैं. ये वो 4 चीज़ें हैं जो मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा हैं. जब हम प्रोडक्ट के बजाय ब्रांड की बात करते हैं और ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो सिमिलरली वी नीड टू यूज द मार्केटिंग मीन्स इन द ब्रांड पर्सपेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशिंग डिजायर्ड ब्रांड इमेज. तो उसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जी ये क्या है. प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में जब हम ब्रांड सिनेरियो को अटैच करते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू डिवेलप अ इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स. फॉर एग्जांपल, हम किसी ब्रांड को अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोगों के माइंड में इसका बड़ा क्लियर और बड़ा पॉजिटिव इमेज जाए, तो उसके लिए यकीनी तौर पे हमें कुछ फैक्टर्स को फोकस करना पड़ेगा. उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो यकीनी तौर पे परसीवनेस ऑफ क्वालिटी है. बिकॉज all the value and all the satisfaction lies under the quality of the product. कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, इसकी बेसिस पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके, उस ब्रांड को लेके उसकी वैल्यू को अपने माइंड में परसीव कर लेता है और फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता है कि जी अगर हम ये पैसे दे रहे हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी और ये ब्रांड हमें इतना मुतमईन और इतना सेटिस्फाई कर सकेगा. तो this is very necessary that this is a quality brand and this support us and this provide you the best of all. What are brand intangibles? Brand intangibles यानी कि ब्रांड के attributes, ब्रांड की परफॉर्मेंस, ब्रांड की परसेप्शन, ब्रांड का इमेज, ब्रांड के लुक्स, ब्रांड का सोशल स्टेटस. ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप देखें, जुनेद जमशेद ने एक ब्रांड बनाया और उसको डेवलप किया. हालांकि वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, लेकिन एक कुर्ता है और उसके साथ मुख्तलिफ उसके एसेसरीज हैं. लेकिन ही ट्राई टू डेवलप दैट ब्रांड एज अ प्रीमियम ब्रांड, एज अ क्वालिटी ब्रांड, एज अ सोशली स्टेटस ब्रांड, एज अ गुड ब्रांड. लोगों के माइंड में इस चीज़ को बनाने के लिए उसने अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप की और उस स्ट्रेटेजी के अंदर उसने क्वालिटी को जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर रखा और उसने देखा कि जी अगर हम अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो यकीनी तौर पे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो लोग जो है वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके साथ अटैच होंगे और जुड़ेंगे. फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रिटर्न और इक्वालिटी हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए. यानी कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट का प्रमोशन, तमाम चीज़ों के अंदर हम सर्टेन क्वालिटी को फोकस करें. एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी, आप एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं थी. प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है लेकिन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आपने अच्छी तरीके से नहीं जोड़े, प्रोडक्ट की का नाम और उसका कलर स्कीम बहुत अच्छी नहीं थी, तो अल्टीमेटली आप जो है वो रिटर्न और इक्विटी कमाने में कामयाब नहीं होंगे, या रिटर्न ऑफ क्वालिटी आप कह सकते हैं उसको कमाने में कामयाब नहीं होंगे. वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट किस किन मरहलों से गुजर कर बन रही है और किस तरह से कस्टमर्स के डिस्पोजल तक पहुंच रही है. तो डेवलपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन विद गुड रॉ मटेरियल, विद गुड पैकेजिंग, विद गुड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं. इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्ट को डेवलप करने की तरफ जाएंगे या उसको बनाने की तरफ जाएंगे ब्रांड में, तो आपको प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है, आप किन फैक्टर्स की बेसिस पर ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आप किन फैक्टर्स की बेसिस पर रेजोनेंस क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर. रिलेशनशिप मार्केट आपको पता है, कस्टम मास कस्टमाइजेशन, आफ्टर मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम. लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए
लोगों से बातचीत करने के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम मुरतब करते हैं जो रिलेशनशिप मार्केटिंग कहलाता है, और जिसकी बेसिस पर हम लोगों को अपने करीब करते हैं और उनसे रिलेशंस को क्रिएट करते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। इसी तरह हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि जी हम प्राइस को ऐसा रखते हैं कि हमारे ब्रांड का एक सोशल स्टेटस है उसको मेंटेन किया जा सके। जुनेद जमशेद इज ऑफरिंग अ गुड कुर्ता इन अ वेरी कूल इन्वायरमेंट इन अ वेरी गुड आउटलेट, तो उसकी प्राइस भी लोगों के माइंड में होगी कि अगर ये क्वालिटी फैब्रिक है, इसकी स्ट्रेचिंग अच्छी है, इसकी स्टिचिंग अच्छी है, इसकी थ्रेडिंग अच्छी है, इसकी स्टाइल अच्छा है, और ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने इसको इनिशिएट किया है, तो यकीनी तौर पे इसका प्राइस भी गली मोहल्ले में बिकने वाले कपड़ों के जैसा नहीं होगा। तो वी हैव टू adopt the pricing strategy which is appropriate to our brand. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जो हैं वो ब्रांड को प्राइस की बेसिस पर रैंक करते हैं और प्राइस की बेसिस पर परसीव करते हैं। कहते हैं कि अगर ये बहुत महंगा है तो यार इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, अगर ये बहुत सस्ता है तो फिर इसकी क्वालिटी भी ख़राब होगी। यानी कि ये ठीक है, अभी काम गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हम इसके ऊपर फोकस कर सकें या उसके ऊपर बेस कर सकें। लिहाजा आपने देखा होगा, अगर लोगों की ज़िंदगी का कोई अहम फैसला होता है, कोई अहम ओकेजन होता है, कोई बहुत ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो वो हमेशा उस ब्रांड को यूज़ करते हैं जो जिससे वो क्वालिटी वाइज मुतमईन होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ठीक है जी, महंगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, हमारा काम मुकम्मल होना चाहिए। तो कस्टमर ऑलवेज रैंक ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइसिंग ऑल्सो। और सेटिंग प्राइसिंग तो बिल्ड ब्रांड इक्विटी, हम जो है वो आपने देखा होगा, ब्रांड की इक्विटी को क्रिएट करने के लिए, लोगों को ब्रांड की तरफ खींचने के लिए, और ब्रांड की जान पहचान लोगों में बढ़ाने के लिए हम जो है उसकी प्राइसिंग भी करते हैं, और उसकी कभी कभी लो प्राइसिंग भी करते हैं, उसके डिस्काउंट्स भी देते हैं, उस पर हम मुख्तलिफ प्रमोशनल ऑफर्स भी करते हैं। तो ये सारे काम हैं जो हमें प्राइसिंग में अपने ब्रांड की इक्विटी को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी है, बट नॉट द लीस्ट, channel strategy. Channel strategy means that how you are actually distributing or solding your product or distributing your product to the people. लोगों तक आप अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा कैसे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुनेद जमशेद मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर आउटलेट नहीं खोलेगा तो लोग उस तक पहुंचेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे। अगर वो कपड़े का ब्रांड है तो यकीनी तौर पे उसको आउटलेट खोलना पड़ेगा, शोरूम नहीं। और अगर वो वॉल्स आइसक्रीम है तो अगर वो आउटलेट और शोरूम में बैठेगा तो कोई उससे जाके खरीदेगा नहीं 10 रुपए की आइसक्रीम या 60 रुपए की आइसक्रीम या 100 रुपए की आइसक्रीम। तो यू नीड टू चूज दैट व्हाट यू आर ऑफरिंग। अगर कोका कोला की बोतल खुशी मनाने के लिए या हर ओकेजन के लिए ईजिली अवेलेबल है, तो वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे। अगर आप कह रहे हैं कि यार अगर आप 4 दोस्त एक साथ बैठ जाते हैं और आपके पास 10 मिनट भी है बात करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप कोका कोला भी पिए ताकि आप खुशी महसूस करें, टुगेदरनेस और यूनिकनेस महसूस करें। तो भाई अगर कोका कोला बहुत दूर मिलती होगी, किसी शोरूम में मिलती होगी, तो फिर फायदा नहीं है उसका। आप मेरी बात समझ रहे हैं। चैनल स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that while developing a brand, how this brand will be delivered to the customers। या अगर आप यकीनी तौर पे आप ये देखें कि अगर आपको घर में खाना नहीं पका है या आपका बाहर खाने का दिल चाह रहा है, तो आप ये देखते हैं कि यार कौन से रेस्टोरेंट में क्या चीज़ मिलती है और वहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार बहुत दूर है, चलो छोड़ो वो नहीं खाते, कुछ और खा लेते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि नहीं यार, हमको दूर ही जाके खाना है क्योंकि हम रिलैक्स होना चाहते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर प्रेफरेंसेस, बट इट ऑल डिपेंड्स एंड बेस्ड ऑन हाउ यू आर एक्चुअली परसीविंग द प्रोडक्ट एंड यू आर एक्चुअली मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। तो मैं दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूँ एक पैराग्राफ में। ब्रांड is something which is having in your own identity। ओन आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए यू हैव टू अटैच ब्रांड एलिमेंट्स विद द ब्रांड, और वो एलिमेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे, सिंबल से लेके उसकी पैकेजिंग तक, ये सब ब्रांड एलिमेंट्स में आते हैं। उसके बाद ब्रांड को बनाने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए यू हैव टू डेवलप अ ब्रांड रेजोनेंस मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ब्रांड रेजोनेंस मॉडल के साथ आपको ब्रांड की इक्विटी को डेवलप करना है, यानी लोग आपको जाने पहचाने और आपको परचेज करें और आपको कंज्यूम करें। और आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है जो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कस्टमर स्ट्रेटेजी एंड चैनल स्ट्रेटेजी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, अगर हम ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो हम कस्टमर्स तक अपना ब्रांड पहुंचा नहीं सकेंगे और हमारा ब्रांड अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम इसको करें। अब यहाँ पर इन डिजिटल मार्केटिंग जब से आ गई है तो हम अपनी जो हमने स्ट्रेटेजी है उसको पुल स्ट्रेटेजी में तब्दील कर दिया है। यानी कि हम जितने भी प्रमोशंस हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी नई
प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लगाते रहते हैं ताकि लोगों की नज़रें उससे हमारा ब्रांड गुजरे, लोगों की नज़रों के सामने से हमारे ब्रांड की प्रमोशन जाए, तो फिर लोग हमारे ब्रांड को खरीदें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप बहुत अरसे तक अपने ब्रांड के बारे में लोगों को नहीं पहुँचाते तो लोग उस ब्रांड को भूल जाते हैं या लोग किसी और ब्रांड पे स्विच कर जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है और जिसको समझने की आपको ज़रूरत है। वो चीज़ें, वो प्रेजेंटेशन की वो चीज़ें जो आपके ब्रांडिंग से रिलेटेड हैं, वो तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज रात तक आप लोगों को स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अंदर जो आज चीज़ें हमने स्कैटर्ड जगहों से पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश मैं करूंगा कि आज शाम तक या आज रात तक आपको ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल तौर पे एक जगह करके आपको भिजवा दूं। यहाँ तक कोई बात अगर अनक्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बहुत सारे आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप ये देखें कि व्हाट आर दोज ब्रांड्स विच वी आर यूजिंग ऑन द डेली बेसिस। जैसे कि आप 20 ब्रांड्स को लिस्ट डाउन कर लें और ये देखें कि ये ब्रांड्स हम किस वक्त यूज करते हैं और ये ब्रांड्स हम क्यों खरीदते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ परचेजिंग दोज ब्रांड्स, हु आर द कंपेटिटर्स ऑफ दोज ब्रांड्स एंड व्हाट दिस ब्रांड इज एक्चुअली मेकिंग मी और गिविंग इट टू मी। यानी वो ब्रांड खरीदने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, वो ब्रांड मैं क्यों खरीद रहा हूँ। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये ब्रांड है, ये मैं ब्रांड रोजाना की बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ और वजह क्या बनी है ये ब्रांड खरीदने के लिए, जबकि इतने सारे मार्केट में कंपेटिटर इस ब्रांड के पहले से मौजूद है। तो ये देखिएगा, ये एक सेल्फ एक्टिविटी होगी जिससे आपको बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।